Hello, guys, welcome to Law Minds. So, I hope you all are doing well and safe and sound and in your respective places. So, today in this video, we are going to discuss how to become an advocate in India. एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ही एक पर्क्स देने वाला, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने वाला, आपको रिकग्निशन प्रोवाइड करने वाला एक प्रोफेशन है. Just being a doctor, advocates are also consider advocacy is as a noble profession. So if you also want to enter in this profession and you want to make money, you want to make your name, then you are at the right place. So in this video, we are going to discuss from the scratch, from the beginning, that how one can become an advocate in India. So without any further ado, let's get started. क्या आपको भी इनमें से कोई एक अट्रैक्ट करता है? आई होप ये सारे वही लोग हैं जिनको हम सब ज़रूर जानते हैं. जॉली एलएलबी, अदालत वॉज माई चाइल्डहुड फेवरेट शो विच आई वॉज वेरी वेरी फैसिनेटेड while I see Adalat because I also wanted to do something that Ronit Roy is doing, and I thank God that I am in this field. I am also studying law, so I can tell you how you can become an advocate. Becoming a lawyer in India is the most rewarding career option, as I have told you. It is very satisfactory as well as it provides a very potential salary in India. As per Bar Council of India, there are approximately 12 lakh registered lawyers and 950 law colleges are functioning in India. 4 to 5 lakh law students in India are in legal profession. In India, every year around 6,000 to 70,000 law graduates enter into this noble profession. So how one can become an advocate? First of all, you have to complete your 12th and you can choose any stream in your 11th, because I know it's a very crucial question to decide upon that what stream you should opt in 11th or 12th. See, if you want to become an advocate, if you want to study law from just after your 12th, then please opt for a subject which you wanted to do your bachelor degree in. For example, if you have opted commerce, then you can opt. If you have opted commerce, then go for BCom LLB degree or BBA LLB degree. If you have opted arts, then you can go for BA LLB, and if you opted science, then you can also do BSc LLB. But most of the law colleges do not provide for this option. The very common and popular is BBA LLB and BA LLB. Most of the top-notch NLUs, top-notch law colleges provide only for these two mediums these two mediums of graduation, either BA LLB, BCom LLB और BBA LLB. ठीक है. और आप क्या कर सकते हैं, आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है वो है ऑनर्स का ट्रेंड. तो आप कर सकते हैं अपना BA LLB ऑनर्स या BBA LLB ऑनर्स, और आप ग्रेजुएट होंगे और उसके साथ साथ आपकी एक ये इंटीग्रेटेड डिग्री होगी जो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स आपको ये डिग्री मिल जाएगी. उसके बाद क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, आपका क्या स्टेटस होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हम बात करें कि जो लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अगर अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना है तो प्लीज़ यू कैन एंटर इनटू दिस प्रोफेशन. दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू. यू कैन डू अ 3-year LLB कोर्स फ्रॉम एनी लॉ कॉलेज विच यू फाउंड इज सूटेबल फॉर यू. तो अब ये तो समझ आ गया कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए लॉ कॉलेज जाना होगा, लेकिन लॉ कॉलेज कैसे जाना होगा वो मैं आपको बताती हूँ. तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप NLUs जानते हैं, NLUs नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, जैसे नालसार है जो बैंगलोर की टॉप लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया में कंसिडर होती है, या आप जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, GNLU में जाना चाहते हैं, GNLU में जाना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल में जाना चाहते हैं, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्लैट का एग्ज़ाम देना होगा. क्लैट क्या होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. ये UG भी होता है, PG भी होता है. PG किस लिए होता है? PG LLM के लिए होता है, मास्टर्स के लिए होता है, और UG होता है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए. तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत लॉ के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपकी लीगल रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, कुछ थोड़ा जनरल नॉलेज आता है. ऐसा सब करके क्लैट का एग्ज़ाम होता है जो कंसोर्टियम ऑफ लॉ करवाती है. उसके हिसाब से जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आता है और फिर आपको लॉ कॉलेजेस अलॉट होते हैं. उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है और आप अपनी उस लॉ कॉलेज में जा सकते हैं. अगर आप
क्लैट नहीं देना चाहते या आपने क्लैट दिया और आपका क्लैट नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप स्लैट यानी सिम्बायोसिस लॉ यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, एलसेट, एलिट, इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिट होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो लॉ कॉलेज है उसके लिए एलिट का एग्ज़ाम होता है। फिर आप अगर ये भी नहीं देना चाहते और ये नहीं करना चाहते तो आप टॉप लॉ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट कर रखी हैं जो आज की तारीख में टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो है जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी, निर्मा लॉ यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस लॉ यूनिवर्सिटी। और अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पे लॉ स्कूल है जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो केटर करता है स्टूडेंट्स की लीगल नीड्स को, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। सी आफ्टर 12th एज पर पेरेंट्स, अगर वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर्स लॉ परस्यू करें और वो स्पेसिफिकली एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं, सी ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग मी, प्लीज़ I want to make a point here and want to tell you that legal profession is the best profession for you, because यहाँ पे कभी, पहली बात तो अगर आपको एडवोकेट भी नहीं बनना है ना, तो भी जॉब्स की कभी कमी नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ इन जनरल, नॉट स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, अगर आपके पास लॉ की नॉलेज है, लीगल नॉलेज है, तो आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। कोई भी आपके राइट्स और ड्यूटीज़ को आप ही को बता के आपको गलत तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। नो वन कैन मैनिपुलेट यू, इवन ऑन द रोड नो वन कैन आपको पता है कि आपके साथ आपका क्या लॉ कह रहा है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपके साथ, राइट? आपको वो सारी चीज़ें पता है, तो इसकी वजह से आपको कोई भी आपको हैम्पर नहीं कर सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। Nowadays it is readily available, but still if you have a very good knowledge of law, very good command over these law subjects, then trust me, sky is the limit. तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज मेंशन करी हैं जिनमें जो प्रॉपरली गर्ल्स यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, वो है बनस्थली विद्यापीठ, बिशप कॉटन विमेंस क्रिश्चियन लॉ कॉलेज, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे एंड मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये वही यूनिवर्सिटी हैं जो प्रॉपरली गर्ल्स बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे गर्ल्स को लॉ और लीगल नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये हो गया हमारा लॉ स्कूल ख़त्म। यहाँ पे हमने हमारी 5 साल की या 3 साल की पढ़ाई कर ली। उसके बाद अब बात आती है, अब हमारा लीगल स्टेटस क्या होगा? जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लॉ डिग्री, व्हाट इज़ योर लीगल स्टेटस? सो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट कंप्लीटेड, हु हैव completed their law degree will be known as lawyers. They are not advocates now. एडवोकेट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपको कोर्ट्स में जाके प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को जाकर के रजिस्टर करवाना होगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन होगा, एक आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ एडवोकेट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स भी होते हैं, उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिकली जो है ना बार काउंसिल की गाइडलाइंस है, जो उनका एग्ज़ाम है, जो उनका पूरा स्केड्यूल है, पूरा एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना होगा और आप फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो हाई कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज ए एडवोकेट बनने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एडवोकेट बनने के बाद आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक एडवोकेट बने और आपके पास भर भर के केसेस आ गए। मार्केट में आपको अपनी एक रेपुटेशन, एक गुडविल मेंटेन करनी पड़ेगी, सबसे पहले वो बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही ऐसा होगा। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप अपने काम को लेकर के ऑनेस्ट है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपके पास इतना काम आता जाएगा और आप इतना ग्रो करते जाएंगे कि फिर कहना ही क्या है। अब यहाँ पे मैं कुछ लॉ स्टूडेंट्स के लिए टिप्स भी इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप एक लॉ कॉलेज में हैं, जाने वाले हैं, जाने का सोच रहे हैं, तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे टिप्स हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटर्नशिप्स पे एक अच्छा कमांड रखना है, क्योंकि लॉ के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना एम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वही बात है, एक डॉक्टर को जब तक आएगा नहीं प्रैक्टिकली स्टेथोस्कोप को पकड़ना, तो फिर वो क्या ही करेगा, राइट? वैसे ही एक एडवोकेट को अगर प्रैक्टिकली पता ही नहीं है कि केस का क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे फाइल करा जाता है, कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगा। तो इसलिए आपको इंटर्नशिप से फोकस करना है। अच्छे इंटर्नशिप्स अच्छे एडवोकेट्स के अंदर
या फिर अगर आप कोई फर्म में काम करना चाहते हैं तो वहाँ का भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं थ्रू योर इंटर्नशिप। उसके बाद आपको मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज लॉ इज ऑल अबाउट योर स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि कोर्ट में जाके ऐसे झगड़े और ऐसा सब होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पीसफुल एक आर्ग्यूमेंट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो उसके लिए भी लेकिन आपको बोलने का स्किल्स, आपका स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू से एंड यू कैन डू जस्टिस विद योर सेल्फ एज वेल एज विद योर क्लाइंट। उसके बाद डिबेट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, लॉ इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, लॉ इज ऑल अबाउट speaking and talking with your other opponent, that how your side is better than his side. So it is all about, you can learn in debates, because debates are something that brings up these skills or inculcate these skills into the students. Try to clear your concepts. See, law colleges can be very tiring, can be very can take upon your nerves, but what you have to do, you don't have to do that ratification, you don't have to do the cram of all the sections of all the case laws, because अगर आप ये करते जाएंगे तो एग्जाम्स तो एक्सेल कर लेंगे, लेकिन आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। तो लॉ की जो स्टडी है वो ऐसी नहीं है कि आपने आज पढ़ा कल छोड़ दिया तो आपको उसको वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज अगर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता है आपके पास क्या सिचुएशन या क्या केस आएगा, एज लॉन्ग एज आपने किसी में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हर चीज़ को लेकर के कंसेप्ट क्लियर हो, हर सब्जेक्ट को लेकर के कंसेप्ट क्लियर हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्जॉय योर कॉलेज लाइफ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ कॉलेज एंड एवरीवन हैव देयर ओन ड्रीम्स एंड aspirations regarding your college. So study hard and enjoy your college. So that's all about how that you can become an advocate in India. Thank you for watching my video till the end. And if you think that this video is able to add some value into your life, then please do not forget to like, share and subscribe to Law Minds. If you have any question, any query regarding your career counseling or regarding anything which is related to law, then please leave your comments in the comments box. We will be happy to answer your comments, and please do not forget to like, share and subscribe Law Minds. Thank you so much.